السلام علیکم ناظرین، پی نیوز ہیڈ لائنز میں آپ کا خیر مقدم۔ میں ہوں آپ کا میزبان بشیر ناز۔ آئے ڈالتے ہیں خبروں کی تفصیلات سے پہلے ایک نظر دن بھر کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ شپین میں شبانہ تصادم آرائی اختتام پذیر، 3 اہلکار زخمی، جنگجو فرار ہونے میں کامیاب۔ غلام نبی آزاد پدم بھوشن ایوارڈ پر کانگریس کا خیمہ مزید تقسیم، جے رام رمیش اور ویرپا موئلی نالا۔ جموں کشمیر میں جمہوریت زمین بوس، افسر شاہی راج مسلط، نیشنل کانفرنس کا سرکار پر الزام۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں جموں کشمیر میں کورونا میں مزید 4959 افراد مبتلا، 7 مریض فوت۔ اگر لوگ کووڈ رہنما اصولوں پر عمل کریں گے تو لاک ڈاؤن کی ضرورت نہیں، ڈاکٹر نوید نذیر کا بیان۔ گاندربل میں کھلے عام کوچنگ سینٹروں میں کووڈ SOPs کی خلاف ورزی جاری، سرکار تماشائی۔ سالانہ بجٹ میں جموں کشمیر کے لیے خصوصی پیکیج اور GST میں راحت کا مطالبہ، KTMF کی پریس کانفرنس۔ ہمارے مسائل حل نہیں ہوئے تو بھوک ہڑتال شروع کریں گے، روڈ ٹرانسپورٹ ورکرز یونین کی دھمکی۔ زیر التوا تنخواہوں کی مانگ، جیک فیڈ سے وابستہ ملازمین کا سری نگر میں احتجاج۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ناظرین، سیکورٹی فورسز نے بدھ کی شام کو شپین کے چک نوگام گاؤں کو محاصرے میں لے کر جو ہی تلاشی آپریشن شروع کیا تو اسی اسنا میں محمد اسحاق ڈار کے ایک منزلہ مکان میں موجود جنگجو نے فورسز پر اندھادھند فائرنگ شروع کی، جو کافی دیر تک جاری رہی۔ تاہم تاریخی کی وجہ سے رات دیر گئے آپریشن کو ملتوی کیا گیا تھا، لیکن علاقے کو سخت محاصرے میں رکھا گیا۔ جنگجوؤں کی ابتدائی فائرنگ سے فوج کے 3 اہلکار شدید زخمی ہوئے۔ صبح 5:30 بجے تک آپریشن جاری رہا، تاہم جب وہاں سے کوئی رد عمل نہیں آیا تو آپریشن ختم کرنے کا اعلان کیا گیا۔ کہا جاتا ہے جنگجو تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ سابق مرکزی وزیر اور سینئر لیڈر غلام نبی آزاد پدم بھوشن ایوارڈ سے نوازے جانے پر کانگریس کا خیمہ مزید تقسیم ہو گیا، کیونکہ جہاں ناراض لیڈر کپل سبل اور ڈاکٹر کرن سنگھ نے جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ کو اس قومی ایوارڈ کا مستحق قرار دیا، وہی سابق مرکزی وزیر جے رام رمیش اور ویرپا موئلی نے مرکزی سرکار کی جانب سے غلام نبی آزاد کو پدم بھوشن ایوارڈ کے لیے نامزد کیے جانے پر تحفظات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ کو ایوارڈ قبول نہیں کرنا چاہیے، جبکہ ویرپا موئلی نے کہا کہ غلام نبی کو پدم بھوشن سے نوازنے کا نریندر مودی حکومت کا فیصلہ سیاسی تھا اور میرٹ پر مبنی نہیں تھا۔ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس نے نوائی صبح کمپلیکس میں ایک اجلاس کے دوران کہا کہ جموں کشمیر میں جاری سیاسی خلفشار، انتظامی انتشار، نامساعد اور غیر یقینی صورتحال جاری رہنے سے لوگوں کی معاشی بدحالی عروج پر پہنچ گئی ہے، جبکہ بے روزگاری اور حد سے زیادہ مہنگائی نے جلتی پر تیل کا کام کیا ہے۔ اجلاس کے شرکا نے کہا کہ مرکز کے سخت گیر حکمرانوں نے کشمیریوں کے ساتھ سوتیلی ماں اور دشمنہ پالیسی اختیار کر رکھی ہے، جس کی ہندوستان کی آزادی سے لے کر آج تک اس سخت گیر پالیسی کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جموں کشمیر میں کورونا کے مزید 4959 افراد کی رپورٹ مثبت آئی، جبکہ 7 مریض فوت ہوئے ہیں۔ سرکاری ترجمان نے بتایا کہ سری نگر ضلع میں سب سے زیادہ 841 افراد میں کورونا کی تشخیص ہوئی، بارہمولہ میں 784، بڈگام میں 440، پلوامہ میں 135، کپوارہ میں 529، اننت ناگ میں 299، بانڈی پورہ میں 130، گاندربل میں 87، کلگام میں 295 اور شپین میں 125 افراد کی رپورٹ پازیٹو آئی ہے۔ اور اسی طرح جموں ضلع میں 703، ادھمپور میں 31، راجوری میں 68، ڈوڈا میں 162، کٹھوا میں 23، سامبا میں 110، کشتواڑ میں 165، پوچھ میں 25، رام بن میں 99 اور ریاسی میں 8 افراد کی رپورٹ جمعرات کے روز مثبت آئی ہے۔ ادھر ڈاکٹر نوید نذیر نے کہا کہ ICMR کے مطابق اومیکران میں اہم مدافعتی رد عمل ہے، جو نہ صرف اومیکران کو بلکہ
तशवीश की दीगर अकसाम को भी बेअसर कर सकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचने के लिए लॉकडाउन मुस्तकिल हल नहीं है। उनका मानना है कि अगर लोग कोविड के रहनुमा उसूलों पर अमल करेंगे तो लॉकडाउन की जरूरत नहीं। आईसीएमआर की जो एक स्टडी हुई है उसमें देखा गया है कि जो लोग ओमिक्रॉन की वजह से इन्फेक्ट हुए हैं और जिनकी बॉडी में इसकी वजह से एंटीबॉडीज़ बनी है, वो एंटीबॉडीज़ जो है जो हमारी बाकी स्ट्रेन्स हैं, जो म्यूटेंट्स हैं इस कोविड वायरस के, जैसे अल्फ़ा था, डेल्टा था या बाकी जो वेरिएंट्स थे जो ज़्यादा सीवियर डिजीज़ कॉज कर रहे थे लोगों में, तो वो उसके अगेंस्ट भी ये इसकी एंटीबॉडीज़ जो है वो इफ़ेक्टिव है। यानी कि अगर कोई इन्फेक्ट होता है, वो रिकवर होता है, उसमें एंटीबॉडीज़ बनती हैं, तो वो बाकी स्ट्रेन्स के अगेंस्ट भी उसमें प्रोटेक्शन दे सकती है। तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम जो है सब लोग एक ही साथ हमें इन्फेक्ट हो जाए, क्योंकि ओमिक्रॉन से भी हमने देखा है कि हालांकि बहुत कम परसेंटेज है, उसमें भी सीवियर डिजीज़ कुछ लोगों में होती है, तो वो भी एक जो जानलेवा साबित हो सकती है, क्योंकि हमने कई जगह देखा कि जिन लोगों की कहीं पे डेथ हुई है उनमें ओमिक्रॉन वेरिएंट भी था। तो इससे ये मतलब नहीं है कि हम सब लोग एक साथ इन्फेक्ट हो जाएंगे। उधर चीफ एजुकेशन ऑफिसर गांधरबल की जानिब से 17 जनवरी को जारी करदा हुक्मनामे की परवाह किए बगैर गांधरबल के कई इलाकों में, जिनमें तालीमी जोन हारी गंगामन गोंड कलन इलाकों में खुलेआम इस हुक्मनामे की धज्जियां उड़ाई जा रही है और यहां खुलेआम कोचिंग सेंटरों में कोविड एसओपीज को रोनते हुए तदरीसी अमल जारी है। जब पी न्यूज के नुमाइंदे मुख्तार अहमद शाह ने जोनल एजुकेशन ऑफिसर हारी गनवन मोहम्मद मकबूल शाह से बात की तो उन्होंने कहा, नहीं, जहाँ तक कोचिंग सेंटर्स या हमारे जो विंटर कैंप्स का ताल्लुक है, बिल्कुल आर्डर हो चुका। गवर्नमेंट का आर्डर हमारे सीओ साहब से भी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी आर्डर आ चुका है। बिल्कुल कोचिंग सेंटर्स या जो है हमारे विंटर कैंप्स वगैरह थे वो टोटली बंद है। तो आज तक जो हमने देखा, मैंने खुद भी कहीं विजिट किया, लेकिन कहीं ऐसा हमने नहीं पाया। क्योंकि हमने आपके नोट्स में लाए, हमने आपके विजुअल्स में दिखाए, तो आइंदा क्या लाए हम? नहीं, ऐसी बात अगर कोई किसी ने वायलेट किया है गवर्नमेंट आर्डर, उसके खिलाफ एक्शन होगी इंशाल्लाह। हम अपनी टीम और मैं खुद भी, क्योंकि इस वक्त 3 साढ़े 3 बज चुके हैं, इस वक्त पॉसिबल नहीं है, हम टीम इस पर पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट कर लेंगे। जो भी इसमें जो वायलेट करेगा गवर्नमेंट आर्डर, तो उसको अंडर लॉ जो है वो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी इंशाल्लाह। इधर कश्मीर ट्रेड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन ने मरकजी वजीर खजाना और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से आने वाले बजट में जम्मू कश्मीर के लिए खुसूसी पैकेज का मुतालबा किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कश्मीर ट्रेड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन ने कहा कि पिछले 3 सालों से कोविड और दीगर नामसाइद हालात की वजह से कश्मीरी ट्रेड पर बहुत बुरा असर पड़ा है, जिससे कई यूनिट बंद हो गए हैं और अक्सर कारोबारी इदारे नुकसान से दो चार हैं। उन्होंने मरकजी सरकार से जीएसटी में राहत और आने वाले बजट में जम्मू कश्मीर के लिए खुसूसी पैकेज का मुतालबा किया है। के लिए जनाब यही हमारा मुद्दा रहेगा कि जो हमारे जीएसटी में, चाहे ट्रेडिंग सेक्टर में किसी भी आइटम पे कितना भी इम्प्लीमेंट हो, उसमें 3 से 5% के लिए हमारी एक रिलैक्सेशन होनी चाहिए, उसमें कम किया जाए। उसमें हमारी यूटी को भी कुछ उसमें कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा और प्लस जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें उसको भी कुछ कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। नंबर 2, हम चाहते हैं जो हमारे जो सीसी लोन्स हैं उसमें कुछ परसेंटेज 1-2% कम किया जाए। नंबर 3, जो हमारा ईएमआई है, ईएमआई में हमारा जो है जिस तरह 2019 में उन्होंने हमें रिलैक्सेशन दिया था मॉरिटोरियल पीरियड में, उसमें कमी की जाए। हम चाहते हैं कि 1 साल के लिए उसको मॉरिटोरियल पीरियड डेफर किया जाए। और उसके बाद हम चाहेंगे जो हमारे छोटे दुकानदार हैं और बड़े दुकानदार हैं, छोटे दुकानदार के लिए एक माली पैकेज का ऐलान किया जाए 5 लाख रुपए का, और जो बड़ा दुकानदार है उसके लिए 10 लाख रुपए का एक माली पैकेज होना चाहिए। क्या होगा उससे कि हमारा जो दुकानदार है, मगर ये जो लोन्स हमें प्रोवाइड करेंगे ये इंटरेस्ट फ्री लोन्स होने चाहिए। जेके रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंतजामिया पर जोर दिया कि वो उनकी 4 माह की जेर इल्तिवा तनख्वाहें वागुजार करे और मुलाजमीन की मुस्तकिली 7वें पे कमीशन व जेर इल्तिवा 56% डे की अजराई की जाए। उन्होंने सरकार को धमकी देते हुए कहा कि अगर सरकार उनके मसाइल हल करने में नाकाम रहे तो वो भूख हड़ताल शुरू करेंगे। पिछले 4 महीनों से हमारी तनख्वाह नहीं है, और जो तनख्वाह है
वो हम इस वक्त 60 पे के हिसाब से ले रहे हैं, और हमारा DA जो है वो 139% है, जबकि गवर्नमेंट ने 195 सैंक्शन किया है। यानी इस वक्त हमारा मुलाजिम कम से कम 56%, 56% लेस सैलरी हर महीने ले रहा है। उसके बाद में जिन लोगों ने यहाँ पे नौकरियां की 30-30, 40-40 साल तक, वो 2019 से अभी तक अपने रिटायर्ड बेनिफिट से महरूम है, ना उनकी ग्रेजुएटी है ना लीव सैलरी है। तीसरा तबका हमारा यहाँ है जो कंसोलिडेटेड ड्राइवर्स है, जो पिछले 12 साल से यहाँ पे एक छोटी सी रकम पे गाड़ियाँ चलाते हैं, ड्राइविंग का काम करते हैं। उन लोगों की रेगुलराइजेशन अभी भी नहीं हो रही है। उनकी रेगुलराइजेशन 8 साल के बाद होनी थी, जैसे पिछले कुछ बैचेस हमने रेगुलराइज किए, लेकिन इनकी अभी तक रेगुलराइजेशन नहीं हो रही है। मुलाजिम इस वक्त अवामी खदमत में है, अवाम को सहूलियत दे रहा है ट्रांसपोर्ट के माध्यम से। आज हमने यहाँ पे आप लोगों को इसलिए भी बुलाया है कि अब पानी हमारे सर के ऊपर से चला गया है। गवर्नमेंट ने SRTC में इन्वेस्ट किया, दे हैव इन्वेस्टेड हेवीली इन द कॉर्पोरेशन, almost 100 to 150 crore rupees have been allocated. Rather, we have purchased some new vehicles and trucks and buses and लोगों की फैसिलिटी के लिए। तो लोगों में ये चीज़ आम हो रही है कि भाई नई गाड़ियाँ आई, अब शायद कॉर्पोरेशन तरक्की करेगा, लेकिन मसला ये है कि वो गाड़ियाँ आने के बावजूद मुलाजिम तनख्वाहों से महरूम क्यों है। इसी दौरान जैकफील्ड से वाबस्ता रहे मुलाजमीन की वेलफेयर यूनियन जम्मू कश्मीर ने श्रीनगर में एहतजाज करते हुए जेरी इल्तिवा तनख्वाहों की मांग करते हुए कहा कि 2019 में जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने इस तंजीम को बंद करने का हुक्म पास किया, लेकिन अभी तक जेरी इल्तिवा तनख्वाहें वागुजार नहीं की। हमारा मेन जो डिमांड है इस वक्त, जैकफील्ड जो वाइंड अप हुआ है 2019 में, जैकफील्ड से पहले जो प्रोक्योर करता था फर्टिलाइज़र, जब वो प्राइवेटाइज हुआ तो उसकी वजह से इसका असर, जो बुरा असर जैकफील्ड की सैलरी पर हो गया। जैकफील्ड उस दहाने पर पहुंच गया कि जैकफील्ड के मुलाजिमों के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को तनख्वाह नहीं थी। फिर जैकफील्ड के मुलाजिमों ने सेक्रेटेरिएट जाकर प्रोटेस्ट किया 2007 में, तो उस वक़्त के मिनिस्टर साहब मेहरबान हो गए, लगभग 90 मुलाजिम जैकफील्ड को एक साथ उन्होंने डिप्यूट किया दूसरे डिपार्टमेंटों में। एक इशू वो तो 50% उससे तो हल हो गया जैकफील्ड का मसला है, मगर जो उसके बाद 60 मुलाजिम और रह गए जैकफील्ड के मुलाजिम इन सर्विस, उनको आज तक कोई पुरसान हाल नहीं है। उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई है, वो CP फंड निकालने जाते हैं, वहाँ उसका CP फंड डिपॉजिट ही नहीं हुआ है 2002 से, जिसकी वजह से वो फाका कशी पर आया है। और तीसरी और एक अहम खास बात है, जो जैकफील्ड के मुलाजिम 2005 से रिटायर हुए हैं, आज तक उनको कोई पैसा रिलीज़ नहीं हुआ है, जिसकी वजह से वो भी इस वक्त, हालांकि इन 2 साल में जो कोविड आ गया उसकी वजह से उनकी हालत और बिगड़ती गई। हमारा गवर्नमेंट से एक इस्तदा है कि हमारे सेक्रेटरी साहब ने बहुत कोशिशें की थी इसको पाई तकमील तक पहुंचाने की, इनकी तो कोर्ट की डायरेक्शनें भी आई, मगर सेक्रेटरी कमिश्नर जो इस वक्त है उसने बहुत कोशिश की इसको जल्दी से जल्दी निपटाने की। लिक्विडेशन का प्रोसेस हल हो गया, लिक्विडेशन कंप्लीट हो गई है। अब चीफ सेक्रेटरी के साहब के टेबल पर ये फाइल पड़ी है, अब हाई लेवल कमेटी उनको बुलानी है ताकि इसका जो प्रपोजल है गवर्नमेंट ने दिया है, जो इनके एसेट्स है, उनको एसेट्स को भेजकर इनकी जो लायबिलिटी है उनको पूरी करनी है, चाहे रिटायरमेंट ड्यूज है, CP फंड है, अनपेड सैलरी है, जो भी मसाइल हैं उनको उसी एसेट्स के अगेंस्ट इनको डिस्पोजल करना है। जो सैक डिसीजन लिया है गवर्नमेंट ने, हम चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द उस पर अमल करे, उसको अमली तौर पर अमलाए, ताकि ये बेचारे जो मुलाजिम फाका कशी पर उतर आए हैं उनका मसला हल हो जाए। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। T न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करेगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज।